ॐ अज्ञानं तिर्मन्दस्य चष्मेन चष्मे श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा कदापि चं तदापि चं वन्देऽहं श्रीगुरु सीतां श्रीविदुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साधवातं सबगणललितं सातं सदैवं साधुवेतं साधुभूतं कृष्ण सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णराधा सबगणललिता श्री विशाखावंशं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशेन गोपीशा कांचा राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी मनवानी हरि प्रिय वांशा कल्पपूरक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेयो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य बनो नित्यानंदा श्री अवधेत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे शेष शून्यवादी पार्षदे सदारिणे। Welcome, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Sorry, I have started by 4:30. So, आपको याद है हमारा कौन सा था सेकंड चैप्टर का? What is this? Okay. Wait. ये मेरा आपकी साइड होगा, मुझे तो क्लियर है। हाँ, एक सेकंड वो YouTube ऑन हो गया, रह गया होगा ना। वेट, कर दिया बंद, सॉरी। सो हमारा सेकंड चैप्टर था और श्लोक कौन सा था? 2.7। हमने काफी सारे श्लोक कर लिए थे। हाँ, उस दिन ज्यादा पढ़े थे ना। हाँ, ये था पक्का। आई एम कंफ्यूज अबाउट माय एक मिनट, मैंने पढ़ा था ना, मेरे को याद आ जाएगा। एक मिनट, नहीं ये वाला नहीं पढ़ा है हमने। ये आगे ये नहीं पढ़ा, इससे ये नहीं पढ़ा है। मेरा ये है कि मैं 2-3 जगह करती रहती हूँ अपनी बहनों के साथ भी, अपना भी तो मुझे याद हाँ, ये किया है, ये किया है। तो 2.7 में है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करो। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। Okay. Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. By nature, by nature's own way, the complete system of material activities is a source of perplexity for everyone. In every step, there is perplexity, and therefore it behooves one to approach a bona fide spiritual master who can give one proper guidance for executing the purpose of life. All Vedic literature advise us to approach a bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life which happen without our desire. They are like a forest fire that somehow blazes without being set by anyone. Similarly, the world situation is such that perplexities of life automatically appear without our wanting such confusion. No one wants fire, and yet it takes place, and we become perplexed. The Vedic wisdom therefore advises that in order to solve the perplexities of life and to understand the science of the solution, one must approach a spiritual master who is in the disciplic succession.
A person with a bona fide spiritual master is supposed to know everything. One should not therefore remain in material perplexities, but should approach a spiritual master. This is the purport of this verse. Who is the man in material perplexities? It is he who does not understand the problems of life. In the Brihad Aranyak Upanishad, the perplexed man is described as follows. Yov etad aksharam garge avidvasmat lokat praiti sa krapanna. He is a miserly man who does not solve the problems of life as a human and who thus quits this world like the cats and dogs without understanding the science of self-realization. This human form of life is a most valuable asset for the living entity who can utilize it for solving the problems of life. Therefore, one who does not utilize this opportunity properly is a miser. On the other hand, there is the Brahman, or he who is intelligent enough to utilize his body to solve all the problems of life. Ye etad aksharam gargi vidit vasmat lokat praiti sa brahmana. The kripans or the kripans or miserly person waste their time in being overly affectionate for family, society, country, etc. in the material conception of life. One is often attached to family life, namely to wife, children, and other members on the basis of skin disease. The Kripan thinks that he is able to protect his family members from death, or the Kripan thinks that his family or society can save him from the verge of death. Such family attachment can be found even in the lower animals who take care of children also. Being intelligent, Arjun could understand that his affection for family members and his wish to protect them from death were the causes of his perplexities. Although he could understand that his duty to fight was awaiting him, still, on account of miserly weakness, he could not discharge the duties. He is therefore asking Lord Krishna, the Supreme Spiritual Master, to make a definite solution. He offers himself to Krishna as a disciple. He wants to stop friendly talks. Talks between the master and the disciple are serious. And now Arjun wants to talk very seriously before the recognized spiritual master. Krishna is therefore the original spiritual master of the science of Bhagavad Gita, and Arjun is the first disciple for understanding the Gita. How Arjun understands the Bhagavad Gita is stated in the Gita itself. And yet, foolish, mundane scholars explain that one need not submit to Krishna as a person, but to the unborn within Krishna. There is no difference between Krishna within and without. And one who has no sense of this understanding is the greatest fool in trying to understand Bhagavad Gita. I hope it is clear what they are saying. कि हाँ, है थोड़ा ना, तो the है let's ही है है, हाँ. कि आई एम कंफ्यूज, मैं वो उनके अच्छे मित्र भी हैं और उन्हें अपना गुरु भी मान रहे हैं, बोले मैं अपनी फैमिली की अटैचमेंट की वजह से वो कंफ्यूज है और विच ही इज रनिंग अवे फ्रॉम द ड्यूटीज. he's confused कि मेरी अटैचमेंट है, मैं क्या करूं, मैं नहीं माना, और इसीलिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहे मुझे क्या सही है क्या करना है. अगेन दिस टॉपिक कम कि मैं जिस रोल पे खड़ा हूँ, हर इंसान को अपनी पोजीशन के हिसाब से, जैसे कहा जाता है ना ड्रिंक करना, मांस खाना कई लोगों के लिए अलाउड है, तो वो उन्होंने अपने ये जो हमारी साइकिल है, वी आर अ ह्यूमन, वी शुड नॉट लिव लाइक अ एनिमल्स. अगर एक जानवर किसी को मार के खाता है तो उसको पाप नहीं चढ़ता है, वो तो ऑलरेडी ड्रॉप डाउन हो चुका है, वो ड्रॉप डाउन हो चुका है, उसकी को तो जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो उनकी है ही नहीं. तो जब हमें जैसे कहते हैं ना गलत भी वहीं से आ रहा सही भी वैसे, तो इट्स आवर विश कि हमें अपने आज जो हम हैं, हमें आपको एलिवेट करना है, अपने आप को अपनी प्रोग्रेस करनी है या नीचे लेके जाना है, और जो भी जिस भी स्थिति में वो अपने कर्मों की वजह से है. सो हमें जानवरों के एनिमल्स की तरह नहीं रहना है. तो ये ह्यूमन लाइफ में हमें कॉन्शियस मिली है, तो हमें अपनी ड्यूटी समझनी है, हमें अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ जाना है, और वो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे
हम माया में हैं और इतनी सारी डिजायर्स हैं, और हम बिना स्पिरिचुअल हुए, बिना हरि का नाम लिए, बिना स्पिरिचुअलिटी में आए, हम उस प्रोग्रेस में नहीं जा सकते, क्योंकि माया का इतना असर है, इतना असर है। हम आज की स्टेट में, अगर मैं तुमसे पूछूं क्या तुम खाली अपने बच्चों के लिए या अपने हस्बैंड के लिए, अपने नियर डियर वन के लिए डिटैच होकर लविंग सर्विस कर सकती हो? अटैचमेंट है, ये हमें पता है कि ये करना है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड, वी कांट कनेक्टेड कि नहीं मेरे को तो अटैचमेंट है। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस कि वो ड्यूटीज भी करनी है, लविंग सर्विस भी करनी है, पर डिटैच होके, जब हम डिटैच अटैचमेंट इज अ कॉजेज ऑफ मिजरी एंड पेन, इजंट इट? हम किसी भी सिचुएशन से अटैच होते हैं। हम ये लाइन सुनते रहे, कर्म कर फल की, जो तुम्हारी ड्यूटी है उसे करो, एग्जैक्ट ड्यूटी है, विदाउट योर सेल्फ। कृष्ण ने मतलब उन्हें सलाह दी, अर्जुन ने वहां सबको इसलिए नहीं मारा कि वो गलत कर रहे थे, तो मार के उसे बड़ा मजा आया। उसको पहले वो फीलिंग हुई कि ये मारना, द्वेष करना, ऐसे खून बहाना बहुत तो ये एक ब्राह्मण के लक्षण है। एक ब्राह्मण को दोष जाता है अगर कोई उसकी हत्या करता है या वो किसी पे हथियार उठाता है, पर वही एक डॉक्टर अगर हथियार से पेट फाड़ता है और एक सैनिक वो करता है, तो वो दोष नहीं जाता। ये क्षत्रिय था तो इसकी ये ड्यूटी थी, तो वो नहीं लड़के भी तो अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है ना, उसे अपने आप को बेवर्डर्ड हो रहा है कि उसे नहीं करना है। तो हमें जो सही कर्म है उसका रिजल्ट कुछ भी हो, हमें सही करना है, जिसमें हम हमेशा हम हर दूसरे पल कंफ्यूज रहते हैं। हम क्यों कंफ्यूज होते हैं? हमारा दिल कुछ कह रहा होता है, दिमाग कुछ कह रहा होता है। हमें कई बार पता होता है ना सही ये है, पर हम अपनी अटैचमेंट के चक्कर में नहीं कर पाते। तो वही और वो क्यों है? क्योंकि हमारे पर माया है। और ये इसके लिए भी कहा है कि भाई बहुत सारे लोग भगवान को कह देते हैं कि भाई वो ही वाज अ ग्रेट मैन एंड ही स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड द गीता, सो दे आर वेस्टिंग द टाइम, दे आर वेस्टिंग द टाइम। एंड प्रभुपाद से ना किसी ने पूछा कि जैसे अब उन्होंने जिस तरह से प्रीच किया कि भाई जो लोग भगवान के नाम पे या स्पिरिचुअलिटी के नाम पे ढोंग कर रहे हैं या मिसगाइड कर रहे हैं, आपने उनके खिलाफ क्यों नहीं बोला? तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा दैट इज नॉट माई बिजनेस टू एक्सपोज एनीवन, माई बिजनेस इज टू डू द राइट थिंग। हमें सही वेलकम विद्या, हरे कृष्णा। Sorry to It's okay. little late. I was. It's okay. तो हम we have done Mangalacharan, we are on a second chapter 2.7, अभी अनुजा ने पढ़ा है। तो हमारा ये पॉपट ये कह रहा है, now I am confused about my duty, loss, composure, miserly, weakness, जो मेरी कमजोरियां हैं और मैं आपको सरेंडर करता हूँ, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है। दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। तो उनसे जब प्रभुपाद कि हम हमेशा कंफ्यूज होता है, डिटैच होके काम करने हैं हमें सारे जो भी ड्यूटीज है, सेम विच आई हैव एक्सप्लेन इन द बिगनिंग आल्सो। तो उनसे पूछा कि भाई प्रभुपाद का बताए थे कि आपने भगवान का नाम लिया तो सबको समझ में आया, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो फिर जो लोग ढोंग कर रहे थे, भगवान को भगवान नहीं मान रहे थे या उनके नाम पे गलत कर रहे थे, उनके अगेंस्ट क्यों नहीं एक्सपोज किया? तो उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट माई बिजनेस, माई बिजनेस इज टू डू द राइट थिंग, नॉट टू एक्सपोज एनीवन। सो ये है भगवान जो बार बार कहते हैं कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। फल चाहे वो मेरी इच्छा के अनुसार आए या मेरी इच्छा के ना अनुसार आए, माई जॉब इज टू डू द राइट एक्ट। अनुजा, आई कैन सी यू। Okay. No, my video is Okay, on. okay. शायद I guess speaker views there. So Okay. इच्छा के अनुसार आए या नहीं आए, हमें कर्म करना है। हमने ये लाइन बहुत बचपन से सुनी होगी, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। अब कौन सा कर्म करना है हमें? कर्म वो जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मुझे सही लग रहा है, या जो कर्म मुझे करना चाहिए जिस सिचुएशन में मैं हूं। तो वो सिचुएशन को कैसे समझा जाएगा? विद द वैदिक लिटरेचर, विद द स्क्रिप्चर्स। सारे स्क्रिप्चर्स वही बात करते हैं, बट दिस इज द ओल्डेस्ट वन, दिस इज द करेक्ट वन। आप कहीं से भी जाओ, एवरीबडी इज टॉकिंग द सेम, बट दिस इज अ वेरी डिटेल्ड वन। So we have to understand that this is a life manual. Today only I was saying it's a life manual. जैसे होता है ना डूज एंड डोंट्स, तो इसमें अगर हम इस डूज में कि मुझे ये करना है, ये करना है, भले ही हमें समझ में नहीं आ रहा मैं इसे कैसे करूं, बट अगर हम प्रयास करेंगे समझने का, तो भगवान मदद करेंगे हमें समझाने की। He will send a spiritual master in our life
who will lead us. एक मार्गदर्शक गुरु होता है, एक शिक्षा गुरु होता है, there's a stages. So भगवान फिर वो रास्ते बनाते हैं, वो आपके लिए एसोसिएशन कहते हैं ना, एसोसिएशन भी वही आपकी प्रियोरिटी. अब मैं कहूँ कि मेरी एसोसिएशन सारा टाइम कृष्ण भक्ति हो तो नहीं पॉसिबल है ना. आई हैव टू लिव विद द मटेरियल वर्ल्ड, आई हैव सम पर्सन इज डूइंग जॉब और बिजनेस और समथिंग, सो वन हैज टू इंटरेक्ट. पर वो काम से मतलब उतना ही होना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है. हमारी प्रायोरिटी एक्सचेंज ऑफ एसोसिएशन शुड बी द कृष्णा कॉन्शियसनेस और गुड एसोसिएशन. हाँ, ये तो सुना ही होगा फिलॉसफी में, जैसा संग वैसा रंग. चाहे ना चाहे हम जिन लोगों की बातें सुनते हैं, हम जो बातों में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो असर, वो स्वभाव, वो कर्म हम अडॉप्ट करते ही करते हैं. So the more we listen this, the more we read it, the more we understand, Krishna will help us to move forward. So इसमें यही बताया विद्या, this is a very big purport. So you can read it. Shall I forward it to you? Yeah. I'll text it Yeah, on. yeah. I will do. If you have anything, then we will go ahead. So this is about कि अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो भगवान आपको रास्ते निकालेंगे. Or he will help you out and you will get all the answer. How it will come, the chant prasadam is a way. If you are failed to understand anything, that is a very easiest way. Give a prasadam and chant. So let's move towards हमारा कहाँ था. Yes, you can see the screen. Next verse. Next विद्या आप पढ़ो. पढ़ पाओगे? Yeah. I will do it. English. Yeah. Na hi prapasyami mama panayadyat yak chokam uksochanam indrayanam avapya bhumau aspatnam radam rajayam surnanam abhi kadipatyam. Translation: I can find no means to drive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to dispel it even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth with sovereignty like a demigods in heaven. Purport. Although Arjuna was putting forward so many arguments based on knowledge of the principles of religion and moral codes, it appears that he was unable to solve his real problem without the help of spiritual master. Lord Sri Krishna, he could understand that his so-called knowledge was useless in driving away his problems, which were drying up his whole existence, and it was impossible for him to solve the perplexities without the help of spiritual master like Lord Krishna. Academic knowledge, scholarship, high position, etc. are all useless in solving the problems of life. Help can be given only by the spiritual master like Krishna. Therefore, the conclusion is that the spiritual master who is 100% Krishna conscious is the bona fide spiritual master. For he can solve the problems of life. Lord Chaitanya said that one who is master in the science of Krishna conscience, regardless of his social position, is the real spiritual master. Kiba Vipra Kiba Nayasta Sudra Kenenaya Ye Krishna Tattva Veta Se Guru Haya. It does not matter It does not matter whether a person is a Vipra or is born in a lower family or in a renounced order of life. If he is a master in the science of Krishna, he is the perfect and bona fide spiritual master. And so without being a master in the science of Krishna conscience, no one is a bona fide spiritual master. It is also said in Vedic literature. Satkarma Nipuna Vipro Mantra Tantra Visarada Avaisanvo Gurur Na Sayat Vaishnava Sava Pako Guru.
A scholarly Brahmana, expert in all subject of Vedic knowledge, is unfit to become a spiritual master without being a Vaishnava, or expert in the science of Krishna consciousness. But a person born in a family of a lower caste can become a spiritual master if he is a Vaishnava or Krishna conscious. Okay, Padma. The problems of material existence, birth, old age, disease, and death cannot be counteracted by the accumulation of wealth and economic development. In many parts of the world, there are states which are replete with all facilities of life, which are full of wealth and economically developed. Yet the problem of material existence are still present. They are seeking peace in different ways, but they can achieve real happiness only if they consult Krishna It's just or stop, the stop. Bhagavad. कृष्णा विद्या, सॉरी. तो ये यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि ये बोला ना कि आई कैनॉट फाइंड एनी ग्रीफ, मेरे को इतना ड्राइंग अप माय सेंसेस, उसी उनके जो वो अर्जुन जो फील कर रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है, मैं ऐसी सत्ता ऐसा वो करके क्या भी करूंगा, और मैं कोई डेमिगॉड्स, मेरे को हेवन हेवन में बनना मेरे को नहीं चाहिए ये सब. तो वो बता रहे हैं. अब ये आपने पढ़ा ना, हम कहाँ थे यहाँ पे, कि हमारे को एजुकेशन ले लें, कितनी भी डेवलपमेंट कर लें, कितनी भी डेवलपमेंट कर लें, कुछ भी कर लें, कितनी भी मेडिसिक्स, आज साइंस ने बहुत बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन दैट इज नॉट परफेक्ट. 100% परफेक्ट कुछ नहीं है. एवरीथिंग फेल्स. साइंस इज डूइंग रिसर्चेस, राइट. बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, इससे कोई नहीं बच सकता. इसका कोई भी वो नहीं है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है. तो अगर हमें प्लेजर चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, प्लेजर और वैकुंठ भगवान के धाम तो एक बहुत अल्टीमेट है. वहां हम कब जाएंगे, कितने सालों में जाएंगे, वी डोंट नो. एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ प्रोग्रेस आवरसेल्फ, कि हे प्रभु का नाम लेकर हमें ये जो जीवन मिला है ये बहुत अच्छा मिला है, नेक्स्ट लाइफ कम से कम इतनी तो मिले, हम ज्यादा ये दे, इससे ड्रॉप डाउन ना हो. तो वो हमें, इंसान का जीवन है, हमारे कानों में भगवान का नाम गया है, तो उसी से कि ये जो दिया है आपने, और ये कहा गया अगर हमने इस जन्म में 10% भक्ति की है तो नेक्स्ट लाइफ हमारी 11% से स्टार्ट होगी. इट विल नॉट वेस्ट, अगर अभी हमें नहीं समझ में आ रहा तो. दूसरी बात जो ये कहते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जो चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल के कितने साल पहले आए थे, तो वो अप्रोक्सीमेटली 500 और मोर देन 500 इयर्स अगो. सो ये कृष्ण के अवतार थे, जो राधा रानी उनके लिए वो थी, दीवानी थी, तो राधा और कृष्ण के रूप में आए थे. उनको देखोगे तो वो दोनों रूपों में है चैतन्य महाप्रभु का. जो आप अगर इस्कॉन गए हो विद्या, तो वो कृष्ण, हाँ, कृष्णा जी ने जब आए थे 5000 साल पहले, तो उन्होंने गलत को गलत, सही को सही किया. ही वॉज राइट. पर चैतन्य महाप्रभु ने जो कलयुग चल रहा था, तो हरि नाम का दान किया, कि तुम सिर्फ, क्योंकि इससे ज्यादा ना कोई यज्ञ कर सकता है, ना तप कर सकता है, ना भगवान को समझने की कोशिश करेगा. सब भूल गए थे. कलयुग पूर्व चरण सीमा पे था. तो उन्होंने कहा सिर्फ नाम ले लो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, मर्डर तक. लेकिन इस नाम में इतनी ताकत है, मतलब है, सच में है. इतनी ताकत है कि आप लेने के बाद आपके सेल्फ रियलाइजेशन आएगा. बिना सेल्फ रियलाइजेशन के आप इसको विश्वास नहीं कर सकते. जब सेल्फ रियलाइजेशन आएगा तो आपको पता चलेगा मैं कहाँ गलत हूँ, जो मेरे से गलतियां हुई हैं. तो जब उन पे कंट्रोल हो जाएगा और आपने नाम ले लिया, वो सब वैनिश, आपका अकाउंट nil and void. That is the spiritual master, they deviate that. हाँ, और वो बिना स्पिरिचुअल मास्टर के तो वो nil and void हो जाएगा. लेकिन ये नॉलेज आने के बाद मैंने फिर किया तो वो बेकार है. फिर हमें मिला, हम फिर गिरे, मिला, हम चढ़े फिर गिरे, हम चढ़े फिर गिरे. तो हमें प्रोग्रेस करनी चाहिए आगे की तरफ, कि लाइफ कैसे जीनी है. एंड आज के टाइम में अगर बहुत लोग मटेरियल हैं, दे डोंट वांट टू लिसन अबाउट, अभी टाइम नहीं है, अभी हमारे पास बहुत काम है. हाँ, भगवान जी जब टाइम मिला, थैंक यू गॉड, भगवान डू दिस. दैट इज आल्सो राइट. दे हैव अ हंगर व्हेन दे विल अचीव एवरीथिंग, कि मैंने पैसा ले लिया, मैंने पोजीशन ले ली, मैंने घर बना लिया, मैंने कोई रिसर्च कर ली, मैं फिर भी खुश नहीं. एक स्टेज पे आके रियलाइज होगा. यस,
द आइडिया इज सूनर वी रियलाइज, अगर हम अपने बच्चों को सिखाएं कि असली खुशी क्या है, असली correct, खुशी correct. क्या है, कैरेक्टर क्या होना चाहिए, प्रोग्रेस करना, पढ़ाई लिखाई करना, पैसा कमाना गलत नहीं है, पर वो कहाँ से कमाया जा रहा है, कहाँ जा रहा है, दैट बाउंड The way how the way how we earn, the way how we act in front of every human. यस, दैट इज आवर कर्मा, दैट इज आवर कर्मा। हमारा एक एक मिनट, एक एक पल, हम जो बोलते हैं, हम जो खाते हैं, हम जो करते हैं, लेकिन भगवान ने कह दिया अगर तुम हेल्प सो करो, बस मुझे बीच में डाल दो, मेरा नाम लेके करो, मुझे अर्पण करके करो, मैं संभाल लूंगा। एंड बिलीव मी अनुजा एंड विद्या, these days I am going so packed, and I get confused. I tell into him, I don't know, you put me in a situation you had, and he really helped. He really helped. He We can see it. Pooja, I can see it. I can matlab feel it. That I can, he really helps. So, and I am from this Kartik Mas, I am having regular sleep, not more than 3-4 hours. actually, even actually, I just want to ask you. Sorry to interrupt in this. How many hours you sleep every day? I just want to know that. Very long time. I just want to know. I'm not very perfect. I mean, if I see Radhika ji and many people, मैं तो कहते ना सूक्ष्म के बराबर भी नहीं हूँ, और मैं तो अभी बिगनिंग ही है। मैं मेरा जो रोज का प्रैक्टिस 9:30-10 बजे आई ट्राई टू गो, बट दीज डेज 10:30-11 बज रहे हैं मुझे, एंड मुझे 3:15 का अलार्म रहता है, तो आई गेट अप बाय 3:45, आई टेक शावर, आई डू मंगल आरती विच ऑन्स, एंड फिर मैं उठी रहती हूँ। फिर आलोक जाते हैं 9-10 बजे के आसपास। मेरा एक गीता का क्लास का कोर्स चल रहा है 18 दिन का, वो अटेंड करती हूँ, बहनों की कॉल मिनिमाइज कर ले। देन मुझे मौका मिलता है, फिर 9:30 बजे कोई कॉल रहती है, वो 10:30, तो मुझे मौका मिलता है तो मैं 20 मिनट आधा घंटा सो गई, वो भी नहीं हो पा रहा। और फिर अभी ये सोशलाइजिंग, रिचुअल, करवा चौथ, मेहंदी, वो सब भी चल रहा है। और आधा, मतलब आजकल मेरा आधा 1 घंटा दिन में अगर टाइम मिल गया, वो भी स्लॉट से तो सो पा रही हूँ। और अभी 2-3 दिन से तो मेरे 3 घंटे की नींद, करवा चौथ पे मुझे तो जल्दी उठना था, सर धोना। Applause to you, to the great. तो ये नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो भगवान दे रहे हैं। मुझे नहीं पता मैं परफेक्ट हूँ या नहीं हूँ। जैसे पंडित लोग तो पहले भगवान को नहलाते हैं, धुलाते, फिर आरती करते हैं, मैं कैसे करती हूँ? तो भगवान ने ना कोशिश देखनी है, मैं कितनी परफेक्ट हूँ, मैं कितनी स्कॉलर्स बन रही हूँ, मेरे को कितना रट गया है शास्त्र उससे, पर मैं कितना प्रयास कर रही हूँ वो देख। जैसे मैं नहा धो के तैयार होती हूँ, टीका लगाती हूँ 12 जगह, तो फिर उन्हें तैयार करते करते सारे मंत्र बोलती रहती हूँ कि मेरे को जूम क्लास भी ज्वाइन करनी है राधिका जी की। अब आइडिया इज कि मेंटर अगर आपको बोल रहा है, बात कर रहा है, तो आप यू आर नॉट सपोज टू लीव बिफोर हर हिम, पर उन्होंने बोल रखा आपको काम है, यू कैन गो टू यूट्यूब, तो मैंने इन्फॉर्म कर रखा है। तो जब इनका नाश्ता चाय पानी देना होता है, जैसे जपा क्लास खत्म हुआ, अगर आई हैव 10-15 मिनट्स आई विल लिसन, अदरवाइज आई विल ड्रॉप इट। तो वो मेरे लिए अपराध नहीं है। ये दिस इज गीता टीचेस की, कैसे कहते हैं, एक तरफ कह दिया कि जब गुरु बोल रहा है, जब स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं ना, बड़े जब बोल रहे हैं उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए, कुछ एथिक्स है ना, तो बीच में बोलना चाहिए, लेट इट फिनिश, देन यू अपनी बात कहो या छोड़ के चले जाओ। तो वो एटिकेट्स नहीं है, वो डिसऑनर है। तो अब हमारी कभी 1.5 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे जपा चलता है, तो अब मुझे तो भगवान ने नहीं कहा मेरा नाम अपनी ड्यूटीज को छोड़ के करो। तो वो मेरा स्पिरिचुअल मास्टर या कोई भगवान नहीं, में वो मेरे को समझना है कि जो मेरा घर चल रहा है, मेरा पति कृष्ण कॉन्शियस में कितना है या नहीं है, वो मेरी ड्यूटी है उसको चाय देना, पानी देना। नॉट टू, अगर मैं उन्हें ये कह दूं कि मैं क्लास कर रही हूँ, मैं नहीं दे रही, वो कुछ नहीं बोलेंगे, पर वो ड्यूटी नहीं, वो ऐसा भगवान का नाम लेना गलत है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अपनी नींद का त्याग करो, अपनी ड्यूटी से पहले मेरा नाम लो, अपनी ड्यूटीज को सेक्रीफाइस नहीं करो कि बच्चों का टिफिन देना है, वो करना है। इससे चाहे मैं नहीं बोल रही हूँ 2 घंटा, और गृहस्थ के लिए तो 5 बजे भी उठ के कर लें तो कोई बुराई नहीं है, 5 बजे 6 बजे
वी आर अलाउड। पर भगवान की कृपा ऐसी हुई कि जब मैंने इनिशियली सुना तो मेरे को रजिस्टर ही 4 साढ़े 4 हो गया, तो मैं वो 1.5 2 सालों से वही फॉलो कर रही हूँ। अब मैं चाहूंगी तो कि पाकिस्तान चलूं तो वो मन नहीं करता, फिर वो गिल्ट आता है कि नहीं। मैं और रोज उठ के ये कहती हूँ, प्रभु जो तूने मुझे कृष्णा कॉन्शियस डाला बहुत अच्छा है, मैं ये क्या मांगती हूँ, जो मैंने नियम बनाए हैं ना प्रभु, मुझे बस सिंसियर मैं वो आपका टूटे नाम ना, ले सके, हाँ। वो ना टूटे, इतनी कृपा करना कि मैं ये करती रहूं करती रहूं करती रहूं। जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ वो You भी will never, बताओगी क्या no, क्या कर रही है। you don't worry, and we are hats off to you. I've never seen you any one single time you are tired from the starting when I met. It's been so many years, but I've never seen you any single minute also tiredness. I always tell you, I have personally also I have told you, Pooja, that I always admire your that charmness, सब हरे energetic, and सब सब thoughtful. हरी कृपा। अभी हरी कृपा और बताऊं हरी कृपा कहाँ से आई? यू नो दैट, लेट मी शेयर ऑन द कॉल, एवरीबॉडी नोज इट। सो मैं एक हाँ, कहानी भी सुनाना चाहती थी। अभी आलोक हैज लॉस्ट अ जॉब, वी आर हियर लाइक कि ठीक है Yeah, बेटर yeah. इतना काम चल रहा Actually, है। I हाँ know हाँ little of your personal things. Yes, हाँ please. हाँ ठीक है ना। I तो say उसके yes. Yeah. बाद 8 साल से मैंने 8 साल पहले जॉब किया, तो आलोक से स्टार्ट वर्किंग समथिंग तुम भी। तो मेरा जॉब और मटेरियलिस्टिक चीजों का मन नहीं करता है मेरे को। आई एंजॉय, मैंने गीता कोर्सेज, अभी मैं सेल्फ डिस्कवरी का खत्म कर रही हूँ, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई विल टेक दैट इन वेडनेसडे, मतलब कमिंग डेज में लूंगी मैं। तो मेरा ना बस भगवान जी का सुन लो बोल दो ठीक है। फिर मेरी जो काउंटर पार्ट है मलेशिया, शी इज ऑल्सो डूइंग कि भाई हमें तो दोनों चीजों में बैलेंस करना है ना। तो मेरा मन ही नहीं है कि मेरे पैसे के लिए काम करूं, पर भगवान ने कहा अगर आपकी जरूरत है तो डेफिनेटली करो। तो वो तुम इच्छा के लिए नहीं कर रहे हो, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हो। जिन लोगों के पास बहुत फंड है फिर भी वो और है और है और है, इकट्ठा करना है अपने घर बच्चों को छोड़ना, ये कर, वो गलत है। हमें शायद मेरी परिस्थिति की इच्छा के अनुसार करनी चाहिए। अनुजा के पास क्या है, विद्या के पास क्या है, कंचन के पास क्या है, वो सब मेरे पास हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो गलत है। मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मैं क्या चाहती हूँ। तो आई वाज, एवरीबडी केम, आलोक फ्रेंड्स केम, कहते पूजा डू समथिंग, किसी ने कहा कुकिंग कर ले। मैंने कहा मुझे कुछ पैसा, मेरा मन नहीं करता। फिर मैंने कहा ओके आई थिंक ऑन इट, कि मुझे, मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया कि मुझे कुछ करना चाहिए। देन मीता कॉल मी, पूजा क्या कर रही है आजकल? मैंने कहा कुछ नहीं कर रही हूँ, काम ढूंढ रही हूँ, है क्या? देन उसका जॉब फेयर का विट वाला है ना, देन शी सेड ओके कम and for as a trainee I will see you for some time and for a month or so, and then we may continue. तो मैं वो भी कर रही हूँ। So अरे Oh, वाह, wow. वेरी That गुड। is congratulations. Oh my God. and This is salary is just a wonderful. peanut. मैंने कहा मुझे सैलरी नहीं चाहिए, और मैं वो काम कर रही हूँ which I have not गुड। done in past. HR I Hey, have never really, done. really, Pooja, hats off to you. तो Hats ये off to बहुत you. तो अच्छा, ये और बहुत ये अच्छा। वो चीजें हैं जो मैंने कभी नहीं करी। उससे 1-2 दिन ट्रेनिंग, एंड आई विल से कि कृष्णा हैज ओनली डन दिस। एंड मैं उस वो जो लेडी थी जो रिलायंस की मैं बता रही थी कि शी इज बिजी एंड शी इज स्टिल फॉलोइंग, मैंने कहा यार अब जब ऐसे लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती। मेरे को कृष्णा सही बात भक्ति में आनंद आ रहा है, मुझे पैसे की डिजाइन नहीं है, पर मेरे अगर घर की जरूरत है तो वो ठीक है। तो वही हर इंसान की तो आपको भगवान ने उस लेवल की एनर्जी दी ना कि आप दोनों चीजें Yes, that संभाल is so. सको। Yes, और yes. इसके 1-2 दिन में ये भी हुआ कि जैसे अब नई नई चीजें, वो मैं मेरा जो प्रोफेशन था और जो मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिली, दोनों अलग है। अब 1-2 दिन ये भी हुआ, कार्तिक का पहला टाइम, उस जो कार्तिक का टाइम चल रहा है और जो अभी हमारा इवेंट है, दैट इज सेम डेट स्टार्टिंग एंड सेम डेज एंडिंग, एंड इन बिटवीन Wow. दिवाली, करवा चौथ, सोशलाइजिंग, दुनियादारी, एवरीथिंग इज देयर। अब मैं ये नहीं कह सकती ना कि मैं सोशलाइजिंग नहीं करूंगी, मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, मैं वहां नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं ये करी। भगवान ने नहीं कहा ड्यूटी सारी करनी है, तो मैंने कहा भगवान बस तू मेरा साथ देना, ये मैं करती रहूं। तो और बीच में ये भी हुआ, 1-2 दिन पहले दिन मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं रोई भी। मैंने कहा प्रभु आपने ये सब चीज दे दिया, मैं कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा है, नाउ यू टेक केयर। एंड ही रियली रिजॉल्व द प्रॉब्लम, he really resolved the problem. मतलब I can't tell you, मतलब I don't know whether next month I'll be there on this platform or not, but वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, वो मुझे ऐसे प्रसाद दिया ना, मैं उसी में खुश हूँ। तो हमें भगवान ने यही कहा है कि मैं एक स्टोरी बताती हूँ, लेट्स दिस फिनिश पैराग्राफ, फिर मैं एक स्टोरी बताऊंगी जिससे कॉल खत्म हो जाए। और वो मैंने स्टेटस पे भी डाला, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, मैंने लेक्चर में से वो वीडियो डाला था, आई जस्ट शेयर इट विद यू। ये आप पढ़ो विद्या। Yeah. In The, economics. the Bhagavad Gita confirms that this Krishna Punyam
No, 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 Marteya no, 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 Lokam. no, 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 no. Which We one have we done studied? ये तो कर लिया ना हमने. Which This one, no. The previous Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, okay. हाँ. which constitute the signs of Krishna through the bona fide representative of Krishna, the man in Krishna consciousness. In economic development and material comforts could drive away one lamentation of for family, social, national, or international inabilities, then Arjuna would not have said that even an unrivaled kingdom on earth or supremacy like that of the demigods in the heavenly planets would be unable to drive away his lamentations. Lamentation, he sought therefore a refuge in Krishna consciousness, and that is the right path for peace and harmony. Economic development of or supremacy over the world can be finished at any moment by the catalysms of material nature. Even elevation into higher planetary situation, as men are now seeking on the moon planet, can also be finished at one stroke. The Bhagavad Gita confirms that Astya Lokam Vishanti. When the results of pure activities are finished, one falls down again from the peak of happiness to the lower status Yes. of life. Many politicians of world have fallen down in that way. Such downfalls only constitute more causes for lamentations. Therefore, if we want to curb lamentation for good, then we have to take shelter of Krishna as Krishna is seeking to do. So Arjuna asking Krishna to solve his problem definitely, and that is the way of Krishna That is consciousness. what is saying. प्रभु कह रहे हैं मेरे पास आओ, Hmm. मैं तुम्हारी सारी समस्या का समाधान कर दूंगा. अगर तुम्हें जो करना भी है तुम मुझे सरेंडर करके करोगे तो मैं वो करूंगा. अभी किसी ने क्लास में, मैं कल ही कल करवा चौथ का व्रत था, तो कल माता जी का सेशन लंबा था. कल जो मेरी संडे टू संडे सेल्फ डिस्कवरी का क्लास होता है, कल 4th था 5th रह गया, तो वो 2 घंटे की जगह 3 घंटे का था. इफ आई टॉक योर टेस्टिंग, वो 3 घंटे का था. और उसके बाद हमारा जो फैमिली ग्रुप है, तो हम पूरा मतलब सब हमने खाना पीना बनाया. 1 मिनट मेरा इस समय 5-5 10-10 मिनट में कैलकुलेशन से चल रही हूँ कि मैं इससे बात करनी है, इतनी बात करनी है, और बाकी कोई कॉल वगैरह कुछ एंटरटेन नहीं. सो दिस इज, बट हाँ, कोई भगवान से रिलेटेड कॉल आ जाए, ऑफिशियल कॉल भी आ जाए ना, आई कैन टॉक फॉर हाफ एन आवर 1 आवर और एंडलेस टाइम. सो दिस इज मेरा इतना. और पर अगर मैं ये करूं, अरे मेरे को काम करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है. वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, उन्होंने दिया. Sorry to disturb, because I always keep using this word. I will just stop now onward saying this. I always telling that I have to do this one, I have this pending, that one pending. No, you are right. I'm not telling you, but I am telling you कि we have to organize. जैसे many people say कि time नहीं मिलता, ये नहीं मिलता. One has to organize. And I guess this प्रभुपाद ने जो और ये भगवान ने जो नियम बना के दिए, इन्होंने, भगवान ने तो कहा मेरा नाम लो, जो प्रभुपाद ने साइकिल बनाया ना, आप सुबह उठो ये करो, तो ये इन्होंने हमारे लिए किया है. If you get up हम early, जल्दी उठ के सब कुछ करेंगे तो और हमारे गुण, हमारे होगा. गुण कैसे असर करते हैं. जैसे कहते हैं ना, भगवान, किसी ने पूछा कि अच्छा भी भगवान से आ रहा है, बुरा भी आ रहा है, तो फिर हमारी क्या गलती है. तो वो कैसे होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो वो सतो गुण में आ गए. हम सतो रजो तमो तीनों गुणों में हैं, हम अच्छे बुरे कंफ्यूज तीनों में हैं, तो कभी ज्यादा है कभी कम है. तो जब हम सुबह उठे तो हम इस समय सतो गुण में हैं, तो सतो गुण अपना प्रभाव छोड़ेगा ना. आप किसी एसोसिएशन में गए जहां आप उलझ गए, जहां आपका कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इतना सुनने के बाद ऐसा तो नहीं है गुस्सा नहीं आता होगा या बुरा नहीं लगता होता है, बाद में भले ही रियलाइज हो जाए कि वो गलत है, तो वो तमोगुण हो गया या वो रजोगुण है, तो वो अपना प्रभाव छोड़े. तो उस गुण में स्थित होके जो हम एक्शन लेते हैं वो हमारा कर्म बनाता है. कर्म हमारी डेस्टिनी बनाती है. कहते हैं भगवान कर रहे हैं, तो भगवान ने तो हमें फॉर्मूला दिया है. भगवान, फ्री विल हमारी है, जैसी इच्छा है वैसा करो. हम जिस गुण में स्थित होते हैं उस हिसाब से
हमारी प्री विल चलती है, उसके बाद वो सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। प्री विल तो मेरी है ना, कर्म ये मैंने आपने इस समय आपने एक वर्ड बोला, बड़ा क्या? अच्छा समझ में आया वो। क्या? आपने बोला भगवान ने हमें फॉर्मूला दिया है, तो हाँ। मुझे उससे एक बात ये समझ आई कि जैसे जैसे मैथ्स में भी होता है ना, फॉर्मूला हाँ। दे दिया है, Yes. डिजिट्स हम भर रहे हैं तो आंसर कुछ और निकल रहा है ना। कुछ निकल हाँ। रहे। हाँ देखो, करेक्ट करेक्ट। एक कंफ्यूज बहुत स्टेज अच्छी में बात बोली। रजोगुण है, तमोगुण आएगा। दिस इज हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम इंसान है, हमें इस लिविंग बीइंग, इस बॉडी, इस शरीर, मानव रूपी शरीर की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। हमारा लक्ष्य जरूर प्रभु के पास जाके आनंद प्राप्त करना है, पर हम वहां कब जाएंगे भूल जाओ। पर हम इस रास्ते में भी चल पड़े ना, तो हमें गिरना नहीं। अगर हम गिरे भी तो एटलीस्ट अगर मैं ये भी समझ में आने लगे कि यहाँ ये गलत है, ये मैंने गलत किया, ये मैंने सही किया, देन वी आर ऑन द राइट पाथ। जिस दिन हम दूसरों की कमियां ना निकाल के हम सेल्फ रियलाइज करने लगे कि ये मेरी गलती है, मुझे यहाँ करेक्ट करना है, दैट डे वी आर ऑन द राइट पाथ। अब आप कहोगे कि मेरे आसपास तो मुझे 1000 गलतियां दिख रही हैं, तो वो सब कर्मों का है। एक पिक्चर दिखाऊंगी। हम इंसान 3 उस पे कठपुतली की डोरों से बने हो, रजो तमो सतोगुण में। तो कभी हम सतोगुण में हैं, कभी रजोगुण में हैं, कभी तमोगुण में है। तो हमें अगर सात्विक वो बढ़ाना है, तो उस स्टेट में जो हम एक्शन लेंगे, दैट इज कर्म। वो करवाता है। जैसे किसी ने क्लास में पूछा कि भगवान सब कुछ करा रहा है तो दोष हमारा क्यों है? तो ये क्लास शायद 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो एक बहुत अच्छी सी कहानी है, मैंने वो वीडियो मैंने स्टेटस पे भी डाल दी, पता नहीं देखी या नहीं देखी। तो वो मैं एक सेकंड, मेरा ना लड़का आया है, अदरवाइज आई विल क्रिएट अनदर जूम कॉल। और एक सेकंड, हाँ होल्ड करिए। नो नो नो। सॉरी। हाँ सॉरी। नो 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 नॉट। तो वो लड़का, ब्रह्मा जी, मैंने कहानी सुनाई होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी को लगता है ना ये कृष्ण नीचे बैठ के इतनी वो शैतानियां करता रहता है, और खुद, और लोग कहते हैं भगवान है। ये कोई भगवान नहीं है, भगवान तो विष्णु है। उसे तो पता चल गया होता है कि भगवान की मैं नाभि कमल से आया हूँ ब्रह्मा जी को। तो वो क्या करता है, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वो भगवान के जो बाल गोपाल होते हैं उनके साथ शैतानियां करते हैं, उनको ले जाके कहीं छुपा देते हैं, किसी गुफा उफा में छुपा देते हैं। फिर देखते हैं नीचे फिर कृष्ण जी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं। बोले मैंने तो इसके सारे फ्रेंड्स छुपा दिए, तो ये किसके साथ खेल रहा है? वो ध्यान से देखता है तो उसे सारे फ्रेंड्स और कृष्णा विष्णु रूप में दिखाई देते हैं। तो वो ऐसे आंखें उसकी बहुत चक्की रह जाती है। वो कहता है कि ये विष्णु भगवान है। फिर वो माफी मांगता है और हाथ जोड़ता है और कहता है कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको शक किया, मैं तो बहुत दुराचारी हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने अपने प्रभु, अपने भगवान को शक किया और मैं आपको पहचान नहीं पाया कि आप भगवान हो। तो ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो और उसके बाद वो देखता है, पहले तो नीचे विष्णु है, उसके बाद अपने बराबर में देखता है वो कि एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ वो उसे बहुत सारे ब्रह्मा दिखते हैं। ब्रह्मा जी एक है हमारे लिए, बहुत सारे ब्रह्मा दिखते हैं। तो वो रियलाइज होके माफी मांगता है। तो वो माफी फिर मांगता है कि सॉरी, मैं आपको नहीं पहचान पाया कि आप ही प्रभु हो। और तो इससे 2 तात्पर्य हैं कि वो कहते हैं कि भगवान को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं पहचान पाए कि वो भगवान है, तो तो हम हम क्या आम चीज है? इंसानों को सबको समझ वी में आर आ जाए नहीं आ जाए। और जो ये नाम सुन रहा है और जो जानना चाहता है, वो फॉर्चुनेट सोल है। और जो नहीं सुन रहे हैं हमारे आसपास, ये नहीं जान रहे, तो हमें उनका चिंतन मनन नहीं करना। जैसे प्रभुपाद ने कहा, मुझे क्या करना है सोचना है, मुझे किसी को एक्सपोज करना है या वो करना नहीं है। जिसको ये, और भगवान भी कहते हैं अपनी इच्छा से आओ मेरे पास। अगर तुम्हें मेटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, शिव जी के पास, पार्वती, अब वो हम भगवान ने भेजी है एजेंट्स है। तुम्हें मेटेरियलिस्टिक डिजायर में, वर्ल्ड में खुश रहना है, तुम यहाँ खुश रहो, तुम खुश रहो, तुम जिस चीज में खुश रहना चाहते हो। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। तो वो कहते हैं ब्रह्मा जी कि मैं नहीं समझ पाया, मैं दुराचारी हूँ, पर ये जो बाल गोपाल आपके साथ इतना रात दिन खेलते हैं,
तो इनको कैसे समझ में नहीं आया कि आप भगवान हो? तो बोलते हैं कि भाई मेरा को वही समझ सकता है जिसके भाव अच्छे हो, जिसका हृदय सिंपल हो, जो मुझे हर हाल में भजता है, जो हर हाल में प्यार करता है, मैं उसका हो जाता हूँ। इसका मतलब है जो दुख में मुझे दोष नहीं देता और जो सुख में ही खाली मुझे सिमरन नहीं करता, जिसके लिए सुख और दुख में दोनों बराबर हूं मैं उसका हूँ, मैं उसको समझ में आऊंगा। जिसके जिसके मन में मेरे लिए भाव है, मैं उसको समझ में आऊंगा। मुझे वैदिक नॉलेज और इंटेलिजेंस से नहीं समझा जा सकता। मतलब आप रट लो और लॉजिक्स दो यहाँ, क्योंकि भागवतम हमारे पुराणों में भी कई चीजें ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी लिखी हैं, पर वो क्यों लिखी है, किसने लिखी है, अगर आप उसमें उलझ जाओगे तो आप नहीं समझ सकते। भगवान को समझने के लिए सिर्फ प्यार भाव चाहिए, विश्वास चाहिए, जो आज की डेट में कलयुग में लोग, इट्स नॉट इजी टू डू इट। एंड हाउ वी कैन डू इट, इवन वी आवरसेल्फ, हाउ वी कैन डू इट, just by chanting and trusting and giving prasadam. इस नाम is the only mantra. The more you chant, आज भी मैं chant करती हूँ तो प्रभु मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता है तो पर मेरी कोशिश मुझे that will lead, कि मैं ये सोच रही हूँ कि ना आए, सिर्फ आपका ध्यान है। We should try. अगर आप नाम ले रहे हो और उसके बाद भी कुछ और ध्यान हो रहा है, मुझे नाश्ते में क्या बनाना है, खाने में क्या बनाना है, उसने क्यों कहा था मुझे, मेरा तो ये मतलब था, मुझे ये नहीं, भले ही बातें आएंगी, बट डोंट स्टॉप चैंटिंग। इस नाम को एक बार भी लिया तो उसका फल है ही है। So this story and this video was so good. मैं ये भेज दूंगी ग्रुप पे, मैंने शायद भेजी है नहीं भेजी, I don't know. So Still you sent it. Apart from that, and today your story was very inspiring. बहुत अच्छा। It was very nice. तो पता नहीं कृष्णा इज गिविंग मी, तो मतलब कोई, मैं तो हर चीज में आई गिव अ क्रेडिट टू कृष्णा। मतलब अगर मैं पहले भी हम कहीं आते थे जाते थे, वी वर ऑलवेज एक्सक्यूज, यस्टरडे हैड अ लेट नाइट, आई वांट टू स्लीप लेट, आई विल गेट अप लेट। हस्बैंड विल आल्सो नॉट से एनीथिंग कि ठीक है। Actually, I know before puja was also. Now yes, now I have a commitment to God. मैं नहीं सो सकती, तो वो कौन ताकत दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। बिफोर माई अलार्म आई चेक माई मोबाइल। समटाइम आई ऑल्सो फील यार, कई लोग हैं जो 5 बजे उठ के जप कर रहे हैं, एंड भगवान ने तो सैंक्शन किया है गृहस्थ वाले लोगों को, तो मैं भी उठूं तो आता कि एक दिन मैं भी 5 पर नहीं होता नहीं होता। तो मैं आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग। मेरे से ज्यादा लोग पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। तो बस प्रयास है। और हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे पहले हम नरसिंह आरती करें, मैं सैटरडे की क्लास संडे कर दूं। मैं तुम दोनों से पूछना चाहती हूँ, बाकी सारे तो ऑप्शनल आते जाते हैं। इज इट ओके फॉर यू गाइस? संडे किस टाइम पे? नहीं, मेरा अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं है, मेरा अभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। टाइम आप दोनों बता दो, टाइम आप दोनों बता दो। If it will be good after 6 or 6. आई एम ओके। मैं 6:30 आजकल आरती करती हूँ, आफ्टर 6 ठीक है। तो 6 o'clock, इज इट ओके? 6 o'clock तो मेरा 5:30, आई एम गुड विद इट 5:30। Okay, ठीक है, no problem. Anuja, you okay? 5:30 my time, 6 o'clock. 6 o'clock your time. Anuja, you are okay. I'm okay. I'm also okay, no problem. I'm okay. हाँ, क्योंकि मीता also can join Saturday Sunday, और मेरा with this schedule, अगर तो आप नहीं कहते तो मैं Saturday कर लेती, but Saturday Alok is also having a छुट्टी and my Monday Friday working, so तो थोड़ा सा वो हो जाता है। बाकी I thought let me check with you too only. No problem. No problem. ठीक है। तो संडे आई मूव दिस कॉल, और संडे मेरा वर्किंग नहीं होता, मेरा मंडे से होता है। तो सो लेट्स कीप दिस कॉल फ्रॉम संडे माले टाइम 5:30। और अगर मैं कुछ गलत मैसेज डाल दूं तो प्लीज रिमाइंड मी, आई माइट फॉरगेट आल्सो। सो आई होप एवरीथिंग इज गुड गोइंग। Yeah, it's good.